Hello student, we have already completed chapter number 1 and today we are going to start chapter number 2, head and body section. In previous chapter, we have seen some tags related to heading tag, paragraph tag and formatting tag that can appear in body section. These tags usually require some content between them, okay? And there are some tags which do not require any content. It is called empty tag. For an example, BR tag is a empty tag. Let us see head section of HTML document. Head section. An HTML document divided into two sections called head and body. We have already discussed this in chapter number 1, okay? The head section of HTML document provides necessary information about the HTML document like page title and page description. The content of head section is included within opening head tag and closing head tags. Combination of these head tags and content between these is known as head element. The first obvious thing that can be included into the header section is the title. It is to be noted that the title will not be displayed as the content of the web page. It is displayed as the title of the browser window that show the web page. Okay? हेड सेक्शन में टाइटल टैग में आप जो टाइटल डिफाइन करते हो वो आपको वेब पेज पे शो नहीं होगा, वो ब्राउज़र विंडो के टाइटल बार पे शो होता है. ओके? If a title is not specified, most browsers display the URL path or file name. The full form of URL is Uniform Resource Locator. ओके? आपने टाइटल टैग में टाइटल डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपको आपकी नोटपैड फाइल का नेम शो करेगा. ओके, आइए देखते हैं इसको. सी, ये लास्ट टाइम हमने जो प्रैक्टिकल किया था ये इसका आउटपुट है. ओके, वहाँ पे हमने हेड सेक्शन में टाइटल टैग में जो टाइटल डिफाइन किया था बेसिक HTML टैग वो हमें यहाँ पर शो होगा ब्राउज़र विंडो के टाइटल बार पर. ओके, बॉडी टैग में जो कंटेंट लिखा था वो हमें यहाँ वेब पेज पे शो होगा यहाँ पे. ओके, और हमने टाइटल डिफाइन नहीं किया है, टाइटल टैग में कोई भी टाइटल डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हमें हमारी फाइल का नेम ही शो करेगा. द टाइटल इज़ नॉट डिस्प्ले ऑन दिस पेज. ओके, ये पेज में मैंने टाइटल टैग में कोई भी टाइटल डिफाइन नहीं किया है और मैंने फाइल का नेम दिया है p2.html. ओके, तो यही फाइल का नेम ब्राउज़र विंडो के टाइटल बार पर शो करेगा. वेब ब्राउज़र देख लो p2.html p2.html. ओके, तो फर्स्ट हेड सेक्शन में टाइटल टैग में आप जो टाइटल डिफाइन करते हो वो आपको ब्राउज़र विंडो के टाइटल बार पर शो होगा. आपने टाइटल डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपने नोटपैड में जो फाइल का नेम दिया है वो नेम शो करेगा. ओके, और बॉडी टैग में आप जो भी कंटेंट लिखते हो वो आपको वेब पेज पे शो होता है. नेक्स्ट, मेटा टैग. Meta tags provide information about the web page in the HTML of the document. This information is called metadata, and while it is not displayed on the page itself, it can be read by search engines and web browser. Metadata is represented by the meta tag. The meta tag provide information about the HTML. The content of the meta tag are not displayed in the web page. Okay? मेटा टैग में आप जो भी कंटेंट लिखते हो वो वेब पेज पे शो नहीं होगा. मेटा डेटा इज यूज बाय ब्राउज़र एंड सर्च engine like Google, Bing, etc. and web browser are Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, etc. Okay, get information about search engine and web browser web page through meta tags. Okay, meta tags provide by description, keywords, author name, etc. First, description. We can provide description of web page by meta tag. Meta tag के थ्रू हम अपने वेब पेज में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं ताकि जब भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को शो करेगा, वो रिजल्ट शो करेगा, तब टाइटल के बाद जो फर्स्ट 2 लाइनें होती है वो डिस्क्रिप्शन की होती है. ओके, For an example, meta name is equal to description, content is equal to about rainbow and its color. यहाँ पे
नेम एंड कंटेंट मेटा टैग के एट्रीब्यूट्स है और उसमें जो हमने लिखा है डिस्क्रिप्शन वो वैल्यू है। तो मेटा टैग के एट्रीब्यूट नेम एंड कंटेंट। ओके, नेम में मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन, वो वैल्यू है, और कंटेंट लिखा है अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर, ये सर्च इंजिन शो करेगा। ओके, नेक्स्ट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स प्रोवाइड्स इन दिस टैग विल बी यूज्ड बाय सर्च इंजिन। ओके, नेम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, objective of the web page, and important topics may be enlisted as keywords. Okay, for an example, I am creating a website like GSAB or Modera Sun Temple. I want to output some of the information like why I am creating this particular page, using what all keywords. You can search this particular page from any search engine like Google, Bing. Okay, so those things will be put in the head section inside the meta tag. Okay, कीवर्ड्स आप डिफाइन करते हो तब सर्च इंजिन को ये पता चलेगा कि आपका जो वेब पेज है वो किस किस टॉपिक से रिलेटेड है, ताकि जब भी यूजर कीवर्ड्स के थ्रू भी आपकी वेबसाइट सर्च करे तो सर्च इंजिन उसका जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिजल्ट है, वो शो कर सके। इसलिए फॉर एन एग्जाम्पल, मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड एंड कंटेंट इज इक्वल टू रेनबो, फिर VIBGY, और जो रेनबो के 7 कलर होता है उसका शॉर्ट फॉर्म है। नेम एंड कंटेंट तो मेटा टैग के एट्रीब्यूट्स है। ओके, कीवर्ड्स हमने यहाँ पर दिया है रेनबो एंड जो शॉर्ट फॉर्म है VIBGY और GYOR, जो रेनबो के 7 कलर होता है उसका शॉर्ट फॉर्म है। विंटेज, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। ओके, नेक्स्ट ऑथर नेम। मेटा टैग में हम ऑथर का नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेटा टैग एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर ऑफ द वेब पेज। ओके, मेटा नेम इज इक्वल टू ऑथर एंड कंटेंट इज इक्वल टू MK गांधी। वेब पेज में हम ऑथर का नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड एंड ऑथर। ओके, इसका जो आउटपुट है वो हमें वेब पेज पे शो नहीं होगा क्योंकि ये सर्च इंजिन एंड वेब ब्राउज़र यूज़ करता है। ओके, आइए समझते हैं इसको। ओके, मैंने यहाँ पर फाइंड किया है मोडेरा सन टेम्पल। ओके, कीवर्ड के थ्रू ही फाइंड किया है, मेरे पास प्रॉपर वेबसाइट नहीं है। तो देखो, सर्च इंजिन ने मुझे रिजल्ट शो किया सन टेम्पल, मोडेरा और विकीपीडिया। उसके बाद में जो फर्स्ट 2 लाइन लिखी है वो हमारा डिस्क्रिप्शन है। ओके, आप कीवर्ड के थ्रू फाइंड करूँ तो यहाँ पर सन टेम्पल एंड मोडेरा वो कीवर्ड होगा। ओके, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो मेटा टैग है वो इस तरह वर्क करता है। नेक्स्ट, कमेंट्स। Comments allow you to provide additional information in the HTML code. The comments are not meant to be displayed. That is, no one can see the comments unless they look at the HTML source code. Okay? Comments का यूज़ यूज़र के लिए होता है, इसका भी आउटपुट हमें वेब पेज पे शो नहीं होगा। ओके, वो हम सोर्स कोड में डिफाइन कर सकते हैं। टू ऐड अ कमेंट वी कैन यूज़ ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर 2 बार हाइफन साइन, एंड क्लोज करने के लिए 2 बार हाइफन साइन एंड क्लोज एंगुलर ब्रैकेट टैग्स। ओके, द फर्स्ट वन टैग रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ द कमांड एंड सेकंड वन टैग रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द कमांड। कमेंट आर also referred as prologue. For an example, this is a comment. आप कमेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, फिर हाइफन साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर 2 बार हाइफन साइन, फिर आपको जो भी कंटेंट लिखना है वो, और फिर आपको क्लोज करना है 2 बार हाइफन साइन एंड क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट, अदर मेटा टैग्स। देयर आर सम मेटा टैग्स that tell the web page to load a specific URL after some seconds, or text telling it that a certain page should not be cached. Okay, the following example refresh the web page after every 5 seconds. For an example,
मेटा HTTP इक्विपमेंट इज इक्वल टू रिफ्रेश कंटेंट इज इक्वल टू 5। ओके, अदर मेटा टैग्स में क्या है, देखो आपने मोबाइल में क्रिकेट देखते होंगे। ओके, तो क्रिकेट में जब भी स्कोर चेंज होता है तो वो हमें पेज रिफ्रेश करके नहीं देखना पड़ता है, वो ऑटो अपडेट हो जाता है। ओके, जब भी स्कोर चेंज हुआ वो पेज कैसे हो जाता है, ऑटो अपडेट हो जाता है। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है, मेटा टैग का यूज़ होता है। ये हम प्रैक्टिकल में करेंगे क्योंकि इसका आउटपुट हमें मिलेगा वेब पेज पे। ओके, तो क्रिकेट का जो स्कोर है वो देखने के लिए हमें पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, वो ऑटो अपडेट हो जाता है, तो वहाँ पर मेटा टैग का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, following example refresh the content of the given URL http www.google.com every 5 सेकंड। यहाँ पर भी क्या आ गया है कि आप कोई भी वेबसाइट पर वर्क कर रहे हो और आपको 5 मिनट्स 5 सेकंड या 10 मिनट्स के बाद दूसरी वेबसाइट पर आपको ट्रांसफ़र होना है तो भी आप हो सकते हैं। ओके, ये भी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट HTML हेड एलिमेंट्स। फर्स्ट, टैग एंड उसका डिस्क्रिप्शन। हेड, define information about the document। ओके, पेज टाइटल, define the title of a document, हम पढ़ चुके पहले। बेस, define a default address और default target for all link on a page। ओके, आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देना है पेज एड्रेस फिर जो भी है वो, तो आप बेस टैग का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लिंक, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड एन एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ओके, ये हम आगे सीखेंगे। मेटा टैग defines metadata about an HTML document। Script, define a client-side script, and style, define a style information for a document। okay, अब हम देखते हैं मेटा टैग का प्रैक्टिकल। ओके, इसके लिए आपको नोटपैड ओपन करना है, तो कीबोर्ड में से विंडो R की को प्रेस करो, एक रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे आपको लिखना है नोटपैड, फिर एंटर कीजिए और जो नोटपैड ओपन होता है उसको फुल स्क्रीन में कर दीजिए। ओके, यहाँ पर आप लोगों को HTML का स्ट्रक्चर लिखना है जो हमने पहले प्रैक्टिकल किया था और उसमें लिखा था वही सेम। ओके, फिर से एक बार लिख देते हैं, ओपन HTML टैग, क्लोज HTML टैग, ओपन हेड टैग, क्लोज हेड टैग। ओके, ओपन टाइटल टैग, क्लोज टाइटल टैग, और हेड के नीचे हमें डिफाइन करना है बॉडी टैग को, ओपन बॉडी टैग एंड क्लोज बॉडी टैग। ओके, ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर है। हमें कोई भी प्रोग्राम करना है तो हमें इतना तो स्ट्रक्चर पता होना ही चाहिए। ओके, अब हम कर रहे हैं मेटा टैग का प्रैक्टिकल, तो मैं यहाँ पे टाइटल में डिफाइन कर देता हूँ मेटा टैग। ओके, डिफाइन कर दिया मैंने। अब जो मेटा टैग है वो हेड सेक्शन में डिफाइन होता है। ओके, तो हम यहाँ से टाइटल के नीचे इसको डिफाइन करेंगे। ओके, तो ये मैंने लिख दिया मेटा टैग। ओके, अब आपको पता है कि मेटा टैग में हमने जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑथर ये सब जो डिफाइन किया है वो हमें वेब पेज पे शो नहीं होगा क्योंकि ये तो वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन यूज़ करता है, तो इसका आउटपुट हमें देखने को मिलेगा नहीं। ओके, तो आइए चेक करते हैं। फाइल को सेव करो, सेव। ओके, और यहाँ पे आपको फाइल का नेम देना है, मान लो मैंने दिया meta.html। ओके, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, सेव, यस। ओके, नोटपैड को मिनिमाइज़ कीजिए, डेस्कटॉप पे देखो आपकी फ़ाइल आ गई होगी मेटा, ये रही, इसको ओपन कीजिए। तो देखो हमें यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। ओके, लेकिन हमने टाइटल टैग में जो टाइटल डिफाइन किया था मेटा नेम, वो ये रहा है, ये ब्राउज़र विंडो के टाइटल बार पर शो होगा। हमने जो फाइल का नेम दिया था meta.html, ये रहा। ओके, हम यहाँ पर कमेंट भी दे सकते हैं, तो आप फिर से आ जाओ नोटपैड फाइल में, यहाँ पर मुझे कमेंट डिफाइन करना है तो मैं कर सकता हूँ। ओपन एंगुलर ब्रैकेट, फिर एक्सप्लेमेंट्री साइन, 2 बार हाइफन साइन, और यहाँ पर आपको कंटेंट लिखना है। मान लो मैंने लिख दिया दिस इज़ मेटा टैग। ओके, 2 बार हाइफन साइन एंड क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। तो ये कमेंट भी यूज़र की जानकारी के लिए होता है। ओके, तो ये भी हमें वेब पेज पे शो नहीं होता। आइए चेक करते हैं।
फाइल को सेव करो, कंट्रोल एस शॉर्टकट की का भी आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे वेब पेज पे आ जाओ, और वेब पेज पे आकर आपको पेज को रिफ़्रेश करना है। आप यहाँ से भी रिफ़्रेश कर सकते हो, अदरवाइज़ आप शॉर्टकट की F5 का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पर पेज रिफ़्रेश कर दिया, लेकिन कमेंट में मैंने जो लिखा है इसका भी आउटपुट मुझे मिला नहीं है। ओके, अब हम चेक करते हैं कि जो 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद जो पेज रिफ़्रेश होता है वो। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कोड लिखना है, मेटा ओके HTTP इक्विपमेंट इज इक्वल टू रिफ्रेश, ओके, और कंटेंट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दिया 5 सेकंड। तो अब क्या होगा, 5 सेकंड के बाद हमारा पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। फाइल को सेव करो, कंट्रोल एस, और यहाँ पे चेंज करो। देखो 5 सेकंड के बाद आपका पेज रिफ़्रेश होगा, देखो हो रहा है। 5 सेकंड के बाद यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए रिफ़्रेश बटन पे, देखो हुआ। ओके, तो ये 5 सेकंड के बाद आपका पेज ऑटो रिफ़्रेश हो रहा है। ओके, मैं अब बॉडी टैग में कुछ कंटेंट लिख देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने स्कोर लिखा है कि इंडिया का स्कोर 40 रन हुआ है, चेक करो इसको, देखो आ गया। जैसे ही पेज रिफ़्रेश हुआ ये इसका आउटपुट हमें शो हो गया। फिर से स्कोर को चेंज करो, 46, आके देख लो पेज, सॉरी हमें ये फाइल को सेव करना है, अब आके देख लो, देखो हो गया चेंज। और ये 5 सेकंड के बाद चेंज होता रहेगा ये पेज। ओके, अब हम ये वेबसाइट पर वर्क कर रहे हैं, अब हमें 5 सेकंड के बाद दूसरी वेबसाइट पर जाना है। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है मेटा टैग में मेटा HTTP इक्विपमेंट इज इक्वल टू रिफ्रेश। ओके, और यहाँ पे कंटेंट में लिखना है 5 सेकंड के बाद, फिर कॉलन करना है, और यहाँ पे URL लिखना है। ओके, आपको जिस वेबसाइट पर जाना है वो वेबसाइट का आपका यहाँ पे नाम लिखना है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया HTTP पे डबल कॉलन और www.gseb.org। ओके, मुझे ये वेबसाइट पर जाना है, फिर इसके बाद डबल कॉलन। तो अभी मैं ये वेबसाइट पर वर्क कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मुझे ऑटोमेटिक GSEB की वेबसाइट पर जाना है। ओके, तो आइए चेक करते हैं। फाइल को सेव करो, कंट्रोल एस, और वेब पेज पे आ जाओ। हमें यहाँ पर रिफ़्रेश नहीं करना है, पेज ऑटो रिफ़्रेश होगा और हम GSEB की वेबसाइट पर आ जाएंगे। देखो आ गए हम। ओके, फिर से एक बार चेक करते हैं, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे आप जो भी वेबसाइट का नेम लिखोगे वहाँ पे आप आ सकते हो। ओके, इसको मिनिमाइज़ करो और हमारी प्रैक्टिकल फाइल को ओपन करो। तो फर्स्ट 5 सेकंड में हमारा स्कोर अपडेट हुआ, और दूसरी जब 5 सेकंड में हमारा पेज रिफ़्रेश होगा तो हम GSEB की वेबसाइट पर आ गए। ओके, तो आप मेटा टैग का प्रैक्टिकल ऐसे कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।